السلام علیکم، بکرا سچ رانا ساجد اسلام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جتوئی کے نہایت ہی کم عمر سمجھدار مفتی حافظ وسیم الدین جامی صاحب، اور آج ہم ان سے دو تین ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے جس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، مگر کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ آیا کہ ہم لوگ دین سے اور روحانیت سے کتنا دور چلے گئے ہیں۔ بہرحال ہم آپ سے بات کروائیں گے حافظ وسیم الدین جامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آفس میں آئے۔ بڑی مہربانی، آپ کی شکر ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال ہم ٹائم ضائع کیے بنا یہ کرنا چاہیں گے کہ امام جو ہوتا ہے، امام کے کیا فرائض ہوتے ہیں، امام کا احترام کس حد تک کیا جائے، اور مقتدیوں پر کیا لازم و ملزوم ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل والانبیاء والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو یاد کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو یاد کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا ہے کہ امام صاحب کی کس درجے تک ادب، احترام، عزت کی جائے، مقتدیوں کے اوپر کس حد تک لازم ہے۔ صحیح ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر کتاب لکھی ہے اتباع المریدین، اپنے مریدین کو خبردار کرنے کے لیے۔ انہوں نے 4 اشخاص کا نام لکھا ہے کہ ان کا ادب احترام کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔ 4 شخصیات میں سے انہوں نے سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا۔ والدین کا ادب احترام کرنا بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسرا انہوں نے نام لکھا ہے کہ مسجد امام، جو مسجد کا امام ہے، صحیح ہے، اس کا ادب احترام کرنا بھی ہمارے اوپر فرض لازم ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ پیر و مرشد، جس سے ہمارے روحانی تعلقات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ادب احترام کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور چوتھا انہوں نے لکھا ہے استاد، جس کے پاس ہم نے علم حاصل کیا ہے، ان کے متعلق انہوں نے یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کا ادب احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے وہ دینی استاد ہو وہ یا کوئی بھی دنیاوی، کوئی بھی ہو، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو یا دنیا کے ساتھ ہو۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا وہ تو بہت ہی بڑا مشہور کلام ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا و مولا ہے، اس کی مرضی، وہ مجھے چاہے اپنا غلام بنا لے، وہ چاہے مجھے آزاد کر دے۔ یہ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا مشہور قول ہے۔ اور اسی انداز کے ساتھ اچ شریف کے جو بزرگ ہیں حضرت خواجہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پڑھ چکے تھے، عالم بن چکے تھے، ان کے پاس ان کے پیر اور ان کے استاد وہ تشریف لائے، پیر بھی وہی تھے اور استاد بھی وہی تھے۔ وہ جب تشریف لائے تو حضرت خواجہ جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضور، مصلی امامت کے اوپر اگر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ تشریف لے چلیں، جس طریقے کے ساتھ میری مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے آپ ویسی نماز پڑھا دیں۔ تو دل کے اندر پھٹکار سی پیدا ہوئی کہ میرا شاگرد بھی ہے اور میرا مرید بھی ہے، اور وہ اس نے مجھے ایسے الفاظ کے ساتھ کہا کہ حضور، میری مسجد کا جو امام ہے نا، آپ جس طرح وہ نماز پڑھاتا ہے مجھے ویسی نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جلال الدین، آپ کی مسجد کا جو امام ہے نا وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید، اپنے امام کو کہا کہ آپ چل کے نماز پڑھیں۔ اب وہ امام مصلی امامت کے اوپر کھڑا تھا، حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی ان کے پیچھے اقتداء کے اندر کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیر و مرشد اور استاد بھی اقتداء کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ جب مسجد امام نے اللہ اکبر کی تو وہ کھڑا تو مسجد کے اندر امامت اللہ اکبر کہہ رہا تھا، لیکن جو ان کے اقتداء کے اندر کھڑے ہوئے تھے، جب انہوں نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا تو سامنے ان کو کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی تھی۔ امام بھی اس درجے پائے کے مالک تھے،
اور حضرت جلال الدین سرخپوش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے استاد اپنے پیر کو کہ حضور یہ تو مقتدیوں جو اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے یہ تو ان کا عالم ہے، امام کا عالم یہ ہے کہ جب تک وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے اس وقت تک وہ اللہ اکبر نہیں کہا کرتے۔ فرمایا یہ ہماری مسجد کے امام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے کے اندر بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پیشوا کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اب اس کے اندر مفسرین کرام کے اختلاف ہے کہ امام سے مراد والدین کی ذات ہے، امام سے مراد استاد کی ذات ہے، امام سے مراد مسجد امام کی ذات ہے۔ باقی امام کا مطلب اگر سادی سی زبان کے اندر لے لیا جائے تو وہ پیشوا ہے، اور جو ہمارا روحانی پیشوا ہے وہ مسجد امام ہے، جس کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، وہ تو ہمارا مرجع وہ امام مسجد امام ہے، جس کے پیچھے ہم جا کر سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اس کے اللہ اکبر وہ کہتا ہے اور جس طریقے کے ساتھ وہ اللہ اکبر کہتا ہے ہم بھی اسی طریقے کے ساتھ اس کے پیچھے چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہماری نمازیں چاہے جیسی بھی ہوں وہ امام کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے وہ امام کو ایک نوکر سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے دکان کا یا کسی دفتر کا ملازم ہوتا ہے نا، اس طرح سے یعنی کہ اس کو سمجھا جاتا ہے، جس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک آج آپ سے شیئر کیا۔ رانا صاحب یہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ملازم اور نوکر سمجھا ہے، یہ ملازم یا نوکر نہیں ہوتے بلکہ یہ مصلی رسول کے وارث ہوتے ہیں۔ صحیح بات، جو یہ تو مصلی حقیقت ہوگی، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، اور عوام ان کی کم علمی سمجھ لیں یا ان کی کم عقلی سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنے امام مسجد کو ملازم کے طور کے اوپر سمجھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص مصلی رسول کے اوپر آ گیا یہ کوئی عام مصلی نہیں، صحیح بات، یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے ذات اقدس نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طریقے کے اوپر جو مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ بھی نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کا وارث ہوتا ہے، ان کے مصلی کا وارث ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اذان ہے، اذان کو ہم لوگوں نے ایک مذاق سا بنا لیا ہے اذان دینا، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اذان کا اگر ثواب بتا دیا جائے، اس کی اہمیت اور اس کی منزلت بتا دی جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل جائیں یا ایک دوسرے کو دست و گریباں ہو جائیں کہ پہلے میں اذان دوں گا۔ تو یہاں ہماری مسجدوں میں کیا سسٹم چل گیا ہے، یا تو وہ لوگ اذان دیں گے کہ جن کی زبان میں لرزش ہو، یا جو نہایت ہی بوڑھے اور ضعیف ہوں، یا وہ لوگ جو بالکل ہی کم عمر اور نابالغ ہوں۔ اس معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانپتی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ 5 جسم رب کائنات نے ایسے بنائے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ 5 جسم ایسے ہیں کہ رب کائنات نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ زمین ان 5 جسموں کو ضائع نہیں کرتی۔ اچھا، 5 جسم سے سب سے پہلا ہے انبیاء، نبی کا جسم، والشہداء دوسرا شہید کا جسم، تیسرا والعلماء با عمل عالم دین کا جسم، والمؤذنین المحتسبین، اور چوتھا جسم جو ہے وہ مؤذن کا جسم ہے، اور 5واں جسم ہے وہ حاملۃ القرآن، حافظ قرآن، با عمل حافظ قرآن کا جسم۔ یہ 5 جسم ایسے ہیں کہ رب کائنات نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، زمین ان 5 جسموں کو ضائع نہیں کرتی بلکہ ان کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو مؤذن ہوگا اسے کستوری کے ٹیلے کے اوپر بٹھا کر بیٹھا ہوگا، وہ کستوری کے ٹیلے کے اوپر، لوگ کہیں گے کہ یار یہ کوئی بڑے مقام کا مالک ہے، یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی غوث ہے، یہ کوئی قطب ہے۔ لوگوں کو پھر فرشتے خبردار کریں گے، نہ یہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی یہ ولی ہے، نہ کوئی یہ غوث ہے، نہ کوئی قطب ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کے نام کو بلند کیا تھا، آج مالک کائنات نے اس کی ذات کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ اچھا، واجب، یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں کہ مؤذن اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا کستوری کے ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوگا، اور آج ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، ہم اس وجہ سے اس درجے سے دور ہو چکے ہیں۔
जबकि इन नौजवान तबके को आगे आना चाहिए। या नौजवान तबका अल्लाह के रसूल के फरमान के ऊपर अमल करना है। सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती अन फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीदिन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत के ऊपर अमल करता है, रब्बे के नात उसे 100 शहीद के सवाब अता फरमा देता है। ये तो छोटी सी देखें, छोटी छोटी सुन्नतें हैं जिससे हम कोसों दूर होते चले जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगा, टाइम मुख्तसर, कि जो है वज़ू का लोगों को नहीं पता। अब मस्जिदों में नमाज के तरीके, सुन्नतें, फ़राइज़ नहीं बताए जाते। जो लोगों को पुराने याद हैं वो उसी तरह ही पढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा जो मस्जिद के जो आदाब हैं, अब मस्जिद में इमाम के पीछे सलाम तकबीर कहने के फ़ौरन बाद लोगों के खंगूरे शुरू हो जाते हैं। रकू में, सुजूद में इमाम कहीं भूल जाए तो 100 बातें अफसाने होते हैं। तो मस्जिद के आदाब जैसे तिनके गिराना या वज़ू का पानी गिराना, ये इन चीज़ों के बारे में भी लोगों को आगाही देनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सवाल ठीक है। मस्जिद का जो अदब है वो तकरीबन हर बालिग ज़ी शऊर शख्स के ऊपर लाजिम है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपने दूसरा सवाल किया कि मस्जिद के अंदर तिनके गिराते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई भी नेकी हो ना उसे छोटा समझ के छोड़ो ना, इसी तरह कोई भी गुनाह छोटा समझ के करो ना। तिनके गिरा देना ये छोटा सा गुनाह है, छोटी सी उठा लेना ये छोटी सी नेकी है। आका अलैहिस्सलाम के हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया जो शख्स मस्जिद के करीब कोई तिनका डालता है, गिरे हुए तिनके को फिर वो उठाकर सफाई के तौर पर वो दूर कर देता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात उस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। ये छोटी सी नेकी है जिसे हम छोड़ देते हैं। हर बंदे को चाहिए, देखें सफाई करने का तो, मस्जिद की सफाई का तो मकाम ही बड़ा बड़ा है ना। हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला पाक मस्जिद पाक की सफाई कर रहे थे। तहज्जुद के वक्त अल्लाह के नबी हुज़ूर इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लेकर आए तो सरकार ने देखा कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला पाक सफाई कर रहे हैं। सरकार ने हज़रत सलमान फारसी को बुलाया, फरमाया सलमान आओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के सीने से लग जाओ। सरकार हज़रत सलमान फारसी अपनी दाढ़ी मुबारक को साफ करना शुरू करते हैं। सरकार ने फरमाया ऐ सलमान मुझे इस दाढ़ी के ऊपर लगी हुई राख से भी मोहब्बत है। फरमाया जो शख्स भी क़यामत तक इस तरह इस मोहब्बत के साथ, देखें सफाई करना तो हुजूर के सहाबा की सुन्नत है, मस्जिद पाक की सफाई करना हुजूर के सहाबा की सुन्नत है और जलीलुल क़द्र सहाबा ने सफाइयाँ की हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पाक की सीरत को उठाकर देखें, फारूक आज़म पाक की सीरत को उठाकर देखें, हज़रत उस्मान पाक, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहहू 1,44,000 हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब रसूल हैं। फरमाया उन तमाम ने ये सफाइयाँ की हैं। उन्होंने ये सादत समझ के कि यार हम अपने घर की भी तो सफाई करते हैं, मस्जिद तो फिर भी तो खुदा का घर है। जो शख्स मस्जिद की सफाई करता है वो जिस तरीके के साथ, जिस नीयत के साथ मस्जिद के जितना उसके अंदर इखलास होगा, मालिक के कहना उसे नेकियां भी उतना ज्यादा अता फरमाते हैं। सही है। वज़ू का पानी जो मस्जिद में गिराते हैं, ये मकरूह है। मोटर का चलाना, इजाफी बिजली का ज़ाया करना, और अगर मस्जिद पाक के अंदर कोई कमेटी है जो एक खादिम रखा हुआ है जो उसके जिम्मा है कि मोटर उसने चलानी है, सफाई उसने करनी है, तो फिर तो ये निज़ाम ठीक है। आजकल तो इंतज़ामिया जो है वो नमाजियों से पहले ही चले जाते हैं। ये उनके गलत ख्याल है। उनको एक बाकायदा तौर के ऊपर खादिम रखना चाहिए मस्जिद पाक के लिए। वो खादिम के ज़िम्मा हर चीज़ होनी चाहिए कि मस्जिद पाक की मोटर चलानी है वक्त के ऊपर, और इसी तरह मस्जिद पाक की सफाई सुथराई। बाकी रहा वज़ू वाला इस मुस्तामल पानी वो मस्जिद के अंदर लेकर आना, ये मकरूह है। इससे फेंक रहे होते हैं नमाजियों पर भी आ रहा होता है, मस्जिद में भी गिर रहा होता है। बिल्कुल गलत रवैया, गलत है ये। सही है। इस चीज़ से हमें इज्तनाब एहतियात, इस चीज़ का बार बार मस्जिद में जिक्र होना चाहिए, जमातियों को बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। इसके लिए बाकायदा जो उलमा हैं, आइम्मा मसाजिद हैं, इमाम मस्जिद हैं, वो अपने मुक्तदियों के इन मसाइल से आगाह करें। ये ज़रूरियात ज़िंदगी के तकरीबन हर मसाजिद के अंदर ये मसाइल पेश आने वाले हैं। सही है। वो इमाम मस्जिद जिनकी वो बात ज़्यादा मानते हैं वो लोग उन तक ये बात पहुँचाएँ। अच्छा, इसके अलावा एक और ऐसा नुक्ता जो बहुत ही हसास है जिसके ऊपर लोग सवाल करते हैं, यानी कि कोई भी एक अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है, क्या उसको फ़र्ज कर लेना चाहिए जैसे अज़ान से पहले? क्योंकि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, पीर नसीरुद्दीन सरकार गोरड़ा शरीफ वालों के मानने वाले हैं, तो
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्या ये हर अजान से पहले पढ़ना, और अब तो यानी कि इसको इस कदर इसमें शिद्दत आ गई कि इसको तकबीर से पहले भी पढ़ा जाता है। गो कि ये बहुत अच्छा अमल है, इसको बंदा अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे करे जब तक नहीं सोता हो, जिस जगह पर भी हो वो दुरूद शरीफ पढ़े, सलात व सलाम पढ़े। आया कि यहाँ पर इसको लाजिम व मलजूम करना या इस चीज़ को निशानी समझना कि ये पढ़ेगा तो सुन्नी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हालांकि एक बारीक मसला है। जी, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक मसला है। देखिए, इसके अंदर हमने आज सलात व सलाम पढ़ते हैं तो हमारी नीयत सिर्फ यही होती है कि ये फ़लाँ मकतब फ़िक्र की मस्जिद है। सही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कलाम पाक के अंदर पे इस चीज़ पर मैंने फरमाया सवाल वअन्नल किया। मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। हमने आज फलां के लिए फलां मसलक की मस्जिद है, फलां की, हालांकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के दर से है। सही है, मसाजिद जहाँ भी होंगी, मस्जिद से तो ये दर्स निकलना चाहिए कि जहाँ मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, वहाँ तो नफरत की बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। आज जो हमारे यहाँ राइज हो चुका है कि बग़ैर सलात इस्लाम के हमारी अजानें नहीं होती, तो बल्कि यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि ये अजान भी नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में हाँ, ये बिल्कुल गलत गलत ये हैं, तरीका है। बिदअत हैं ये। हाँ, इस तरीके से हमें इज्तनाब करना चाहिए। बाकी रहा सियासत के हदीस पाक के अंदर कि सैयदना सरकार बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान देते थे, अजान से पहले वो ख़ानदान कुरैश की तारीफ़ करते थे। सही है, वो बुलंद आवाज़ के साथ कहीं भी साबित नहीं, कहीं भी साबित। बुलंद आवाज़ से कहीं भी साबित नहीं है। हाँ, तकरीबन नसाई शरीफ के हदीस पाक है बाद अज़ान, और सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा सल्लु अलैया, कि अज़ान के बाद तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात के ऊपर दुरूद व सलाम पेश करो, ताकि उसको अजान का हिस्सा ना बनाए। इसी तरह। हाँ, हमने आजकल जो समझ रखा है, हमने ये समझ रखा है कि इसके बगैर हमारी अजान ही हमारी नहीं आने वाली होगी। नस्ल को पता होना चाहिए कि ये मसाइल जो हैं ये इस तरह से हैं, ये लाजिम व मंजूम नहीं है। बहरहाल इसके अलावा मैं एक अहम सवाल करना चाहूँगा आखिर में कि इमाम की जो तनख्वाह है, ये हम लोग किस रवश पर चल गए हैं कि वो 5-6 हज़ार 7-8 हज़ार देने में हम लोगों को ऐसे उफ़त होती है, हम लोगों को ऐसे परेशानी हो जाती है। वो भी 8 हज़ार या 5 हज़ार कोई एक बंदा नहीं देता, वो भी चंदा करना पड़ता है, इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो वो भी रो रो के और फिर इमाम पर एहसान जताना कि हम पता नहीं आपको ज़र खरीद हैं, वो ख़रीद लिया है। हालांकि मेरे नज़रिए से मैं अपने चैनल के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी मसाजिद हैं उनके इमाम की तनख्वाह कम अज़ कम 25 हज़ार, और जो प्राइवेट मसाजिद जो लोगों ने मोहल्लों में बस गलियों में बनाई हुई हैं, उसके मोहल्ले वालों को चाहिए कि इमाम की तनख्वाह कम अज़ कम 15 हज़ार या 18 हज़ार होनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राना साहब, ये आपका सवाल बिल्कुल 100% अच्छा सवाल है। देखें, ये मैं अपनी एक ज़ाती ख्याल राय पेश कर रहा हूँ। अगर इमाम मस्जिद या हाफिज़ कुरान की तनख्वाह आज 50 हज़ार होती ना, आज आपको हर घर के अंदर हाफिज़ कुरान नज़र आता है, हर घर के अंदर। सही बात। देखिए, हमने दुनिया की तालीम के साथ इतना इस अंदाज के साथ मोहब्बत की है कि हम सुबह के वक्त बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे घर से वज़ू करके नहीं आते, बल्कि मस्जिद के अंदर आके वज़ू करते हैं। सही। घर वाले वालदा हो चाहे वालिद हो, वो बच्चों को उठा के मस्जिद की तरफ भेज देते हैं कि बेटा जाओ मस्जिद की तरफ वज़ू कर लेना, वहीं कुरान पढ़ लेना। हालांकि काम आने वाली किताब को कुरान वो बगैर वज़ू के ही कायदे सिपारे और सब कुरान कुछ लेकर मस्जिद में आ जाते हैं, और वो भी हमें चेक करना पड़ता है कि किस बच्चे ने वज़ू किया हुआ, किस बच्चे ने नहीं किया हुआ। जब हम अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजते हैं तो इसका बरअक्स देखते हैं, बड़ा तैयार बल्कि उसके लिए तो खुशबू तक का एहतमाम किया जाता है। देखें, वो दुनिया की तालीम है और ये दीन की तालीम है। दीन की जिस तरह हम दुनिया की तालीम के लिए एहतमाम करते हैं, वो भी हमें करना चाहिए। वो हमारे सफाई नस्ल ईमान है, हमें वो भी एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके के साथ हमें दीन की तालीम के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये तो हमारे लिए आखिरत की इस तरह समझ लें कि निजात का जरिया है। सही है। बाकी रहा इमाम मस्जिद की तनख्वाह का, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इमाम मस्जिद की तनख्वाह कम अज़ कम 18 हज़ार, कम अज़ कम, यानी इतना तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप खलीफा बने ना, तो आपकी तनख्वाह जो मुकर्रर की गई, आपने फरमाया जितना मजदूर की दिहाड़ी है
उतना मेरी तनख्वाह होनी चाहिए। सही है। तो उन्होंने कहा कि आप तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपने तो मस्जिद के अंदर बैठ के फैसले भी करने हैं, लोगों को नमाजें पढ़ानी हैं। तो सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पाक ने फरमाया कि अगर मैं देखूंगा कि अगर मेरी ये गुज़र से कम है, सही है, औकात से ये कम है, तो फिर मैं मजदूर की दिहाड़ी बढ़ा दूंगा। वाह, सही बात, जितनी मजदूर की दिहाड़ी होगी उतना अबू बकर सिद्दीक का माहाना की तनख्वाह होगी। वाह, कमाल, ठीक है ना। कम अज कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि वक्त का जो मस्जिद इमाम है उसकी इतना तनख्वाह सैलरी जरूर होनी चाहिए जितना आज के दिन के अंदर मजदूर की दिहाड़ी है, उसके हिसाब से मस्जिद इमाम की तनख्वाह उस हिसाब से। मजदूरी जो है आजकल 700 से 800 है, अगर 800 भी लगाई जाए तो 32,000 तकरीबन बनती हैं, 24,000 25,000 तकरीबन बनती जितनी है। बना रहे हैं, ठीक है ना। इतनी तनख्वाह इमाम मस्जिद की जरूर होनी चाहिए। सही है। तो वो जितनी भी है 24-25,000 कम से कम इतनी तनख्वाह तो इमाम की होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपसे टॉपिक बात करने और आपके उस्ताद का जिक्र ना करें ये तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अल्लामा मोहिउद्दीन फैज़ी साहब जो थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल करे, और उनका जनाजा शेखुल हदीस अरशद सईद काज़मी साहब ने पढ़ाया। और इसके अलावा जो है उनकी बहुत सारी खिदमात, उनके बहुत सारे शागिर्द मुफ्ती यानी किराम, तो उनके बारे में एक कोई लाइन आप कहना चाहें? देखिए, मेरे जो उस्ताद शेखुल कुरान, मेरे मुरब्बी हज़रत शेख अकबर गुलाम मोहिउद्दीन फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो ज़ात अक़दस थी वो बड़ी नेक सिफत, वली सिफत इंसान थे। सही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कुर्बत के अंदर 13 साल मैंने गुजारे हैं। सही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुझे सादत बख्शी कि मैंने अपने उस्तादों की जुतियाँ सीधी की। वो कोई वक्त उनका ऐसा ना होता था जो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र से गाफिल गुजरता। सही बात। बल्कि वो अक्सर ये कहा करते थे कि गाफिल गाफिल शागल उठन शागल सुमिन। अक्सर उनके अल्फाज के ऊपर, ज़बान के ऊपर ये अल्फाज होते थे कि वो हर वक्त ज़िक्र इलाही के अंदर मसरूफ़ रहते थे। सही है, माशाअल्लाह। और उनकी मोहब्बत आका अलैहिस्सलाम की दर दौलत से इतना थी कि नबी अलैहिस्सलाम के दर दौलत की ज़ियारत उन्हें 46 मरतबा हुई। अच्छा, माशाअल्लाह। 46 और हज मरतबा यानी कि करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 92 के अंदर उन्होंने हज किया था, और 96 से लेकर आखिर उम्र तक उन्होंने 2008 से लेकर फिर आखिर उम्र तक तकरीबन साल के अंदर 2 मरतबा या 3 मरतबा तो उनकी हाज़िरी सरकार अलैहिस्सलाम के दर दौलत के ऊपर ज़रूर होती सही थी। है, माशाअल्लाह। ये उनकी आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत के अंदर दर दौलत के साथ मोहब्बत का सबूत था। और मैंने 2-4 मरतबा खुद मैंने पूछा कि आपको कभी आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई? तो वो कहते ये राज की बात है, ये नहीं पूछा करते। 2015 के अंदर मैं अपने उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ मदीना मुनव्वरा के अंदर जब गया तो एक शख्स मिला, तो मिलने के बाद वो बंदा चला गया, तो वो उसकी मैंने पीठ देखी, तो मुझे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने इस बंदे को देखा? मैंने कहा जी देखा। तो रब्बे काबा की कसम राना साहब मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेरे उस्ताद ने फरमाया ये बंदा ऐसे लगता है कि जैसे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो मुझे वहाँ ये यकीन हो गया कि मेरे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत खिज़र के साथ मुलाकात हुई है। जो ये शख्स इतना कहता है कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, इनकी शक्ल उनसे मिलती है, तो वो असल के अंदर अपने आप को पर्दे के अंदर रखकर वो बताना चाहते थे कि ऐसे शख्सियात भी हमें मदीने के अंदर मिलते हैं। बहुत खूब। बहरहाल हम एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे वसीमुद्दीन जामी साहब का कि उन्होंने टाइम निकाला, और इंशाअल्लाह इस तरह बहुत से दीनी टॉपिक्स हैं, मसाइल हैं, उन पर फिर हम इनको दावत देंगे एक दफ़ा फिर। और आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।